بتایا کہ پھر مجھے جو تنہائی ہے اس کے لیے پھر مجھے انزائٹی ہو جاتی ہے. انزائٹی ہوتی ہے تنہائی کی وجہ سے, یہ تو ویسے بھی ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ گیدرنگ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں, زیادہ گیدرنگ سے بھی ہو جاتی ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں, بی پی ہائی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسیہ خان. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. ناظرین, عمران خان کے میڈیکل چیک اپ پر حکومت اور تحریک انصاف ایک بار پھر آمنے سامنے. شفا انٹرنیشنل کے بجائے پیمز منتقلی, عدالتی حکم اور توہین عدالت کے الزامات نے معاملے کو ایک الگ ہی رخ دے دیا. اب دونوں فریقین سپریم کورٹ میں اور فیصلہ عدالت کے ہاتھ میں. لیکن اس معاملے کے قانونی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیگل ایکسپرٹ آف سپریم کورٹ شاہ خاور صاحب. ان سے جانیں گے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی قانونی حیثیت کیا ہے, شفا انٹرنیشنل کے بجائے پیمز منتقل کیے جانے کے معاملے کو قانون کس نظر سے دیکھتا ہے, جبکہ عمران خان کا پیمز ہاسپٹل میں بھی باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوا. وہاں سے ان کا جو میڈیکل چیک اپ کے بعد جو ہے ان کو ماشاءاللہ الحمدللہ فٹ ڈکلیئر کیا جانے کے بعد جو ہے ڈسچارج بھی کر دیا گیا. جی شاہ خاور صاحب کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر جی مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون اس پورے معاملے پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جب ایک حکم جاری کر دیتی ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے ہر رسپونڈنٹ کے اوپر, اور اس میں رسپونڈنٹ جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ تھی, جی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایڈمنسٹریشن تھی, جیل انتظامیہ تھی, تو ان پہ بڑا واضح طور پہ حکم دیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے منتقل کیا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جی اسلام آباد. اور وہاں پہ ایک انہی کے ہاسپٹل کا ایک بورڈ ہوگا جس میں اسپیشلسٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, تو وہ بھی ان کا بھی انہوں نے حکم کیا تھا کہ وہ ان کا باقاعدہ چیک اپ کریں گے, پھر ٹیسٹ ہوں گے, اور پھر سپٹمبر کی ایک تاریخ دی گئی اور اس وقت تک اس میں باؤنڈ کیا گیا کہ خان صاحب کو اس وقت تک ہاسپٹل میں ہی رکھا جائے گا, اور ان کی ہر ہفتے فیملی ممبر سے ملاقات کرائی جائے گی, ان کے بیٹوں سے ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کرائی جائے گی, اور ان کا پیریوڈیکل چیک اپس ہوں گے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی کسی نے بھی کی تو دوسرا مخالف فریق جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے جی, اور پھر ہم اس میں مناسب قانونی کارروائی کریں گے. اب انہوں نے بجائے ان کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کرنے کے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد جو 2 دن کی ڈیڈ لائن تھی اس میں ایک رات کی تاریکی میں جو ہے اس کو لایا, اور بجائے اس کے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے, حالانکہ وہاں پہ تاثری دیا جا رہا تھا, جو وہاں پہ غیر معمولی انتظامات تھے, پولیس وہاں پہ ڈپلائڈ تھی, تو لوگوں کا خیال یہی تھا کہ ادھر لے جایا جائے گا. لیکن ان کو پھر پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ ان کی سسٹر جو ہیں ان کو بھی وہاں عثمان خان ان کو بھی لے جایا گیا وہاں پہ. لیکن فیصل تھے, انہوں نے پھر بتایا کہ ان کو وہاں سے اڈیالہ جیل سے شفا ہاسپٹل میں کوئی 2.5-3 گھنٹے ادھر بٹھائے رکھا, تو تاثر یہی دیا کہ خان صاحب کو ادھر لایا جائے گا, لیکن ان کو بھی شفا ہاسپٹل سے پیمز ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک توہین عدالت کی درخواست بھی گزار دی. اچھا سر مجھے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی سیکیورٹی ریزن تھے, حکومت کا موقف بھی سامنے آیا کہ سیکیورٹی ریزن تھے, وہاں پہ بہت سارے کارکنان جو تھے جمع ہو گئے تھے, جبکہ عدالت کا حکم تھا کہ مطلب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, آپ کے کوئی جو سیاسی رہنما ہیں ادھر موجود نہیں ہوں گے, جبکہ آپ نے دیکھا کہ پھول پھینکے جا رہے ہیں, وہاں پر کارکنان جمع ہو گئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے, میڈیا سب جمع تھا. حکومت کا یہ بھی موقف تھا کہ ہاسپٹل کے اندر دوسرے بھی پیشنٹ تھے, ان کو بھی دیکھنا تھا, اور عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی وہ کنسرن تھے, تو جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پیمز ریفر کر دیا گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو سپریم کورٹ نے اس نے آرڈر جاری کیا تھا اس میں 2 دن کا ٹائم کیوں دیا تھا؟
जी वो इसीलिए दिया था कि उस दौरान वो तमाम हिफाजती इक़दाम सिक्योरिटी के हवाले से उनको आने ले जाने के जितने भी चीज़ें हैं उन SOPs को फॉलो करके, तो इसलिए उनको टाइम 2 दिन का दिया था। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है या इस्लामाबाद इंतज़ामिया का, जी जी वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी थी जो उनके लिए खतरे का बायस बन सकती थी, जी उधर कारकुनान इकट्ठे हो गए थे, जी जी मीडिया, तो मेरा ख्याल है कि वो मैनेज करना कोई इतना काम नहीं था। सर आप अगर हिस्ट्री देखें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, चाहे खुशी हो या उन्हें गम और गुस्सा हो, उनको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह ना करे अगर कोई बदमज़गी होती तो बाद में भी फिर सिक्योरिटी के हवाले से ही सवाल उठते कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है। तो इस उससे जो था कि हुकूमती मौक़िफ़ था कि जी हमें उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ थी। देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल ये है कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त PTI वालों ने जमा करवाई है उस पर ज़रूर नोटिस होगा, नोटिस जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और गवर्नमेंट को ज़रूर होगा, लेकिन उनसे फिर वजाहत तलब की जाएगी कि आप बताइए जी अगर तो वो वजाहत देने में काम में रहे फैक्ट्स के ऊपर, फिर वो कार्रवाई उधर ड्रॉप हो सकती है। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी वो ये है कि जो उस्मा खान है जी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी जी उन्होंने वो वाकयात तो सारे बताए जी से रियाला से उनको पेश ले जाया गया जी जी, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो ठीक है। बिल्कुल उन्होंने बकायदा बड़ी खुशी से ऐसे करके कहा कि बिल्कुल फिट है। तो आप और उन्होंने ये भी बताया कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है नॉर्मल, तो उनको वो डिस्टर्ब इसलिए हो जाता है कि वो एंजाइटी की वजह से उन्होंने बताया कि फिर मुझे जो तन्हाई है उसके लिए फिर मुझे एंजाइटी हो जाती है, उससे मेरा बीपी जो है सर एंजाइटी होती है तन्हाई की वजह से, ये तो वैसे भी हो जाती है, जो लोग गैदरिंग में भी रह रहे होते हैं ज्यादा गैदरिंग से भी हो जाती है कि आप परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बीपी हाई हो जाता है। आप अपने भी मतलब देखते हैं हम अपने इर्द गिर्द के शोर शराबे से ज्यादा हो जाता है। तो ये कोई इस तरह की लॉजिक नहीं है कि सिर्फ तन्हा रहने की वजह से उन्हें एंजाइटी हुआ है, डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ है, जबकि एक नॉर्मल बंदे को इस एज में ये चीजें नॉर्मल हैं। मतलब उसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि उनको जबरदस्ती आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। देखिए जब कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर चेक करता है, अगर वो बिल्कुल फिट डिक्लेयर है, मुझे बताएं क्या रीजन है कि वो उसको जो है जबरदस्ती हॉस्पिटल में रखने का पाबंद हो। आपकी देखिए आपकी बात ये दुरुस्त है और हुकूमत का भी मौक़िफ़ यही है और उन्होंने जो नज़रसानी की दरख्वास्त उन्होंने भी दायर की है जी कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इसको आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भेज दें जी बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चूंकि कानून और जेल मैनुअल यही तकाजा करता है कि कोई भी कैदी या हवालाती जिसको लाहक हो मेडिकल इश्यूज जी जी तो उनको जो डॉक्टर वो जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट और उसमें बना हुआ मेडिकल बोर्ड उसी को ही जो है वो समझा जाता है जी तो वो उनकी इस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि सिर्फ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने से वो हुक्म तो गैर मौसर नहीं हो जाता। मेरा जाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को और इंतजामिया को उस हुक्म की पाबंदी करनी चाहिए थी जी। उनको बेशक वहां ले जाते, अगले दिन या उससे अगले दिन उनकी जो नजरसानी की दरख्वास्त है वो लग जाती, उसमें वो कायल करते उनको कि हमने आपके हुक्म की तामील तो कर दी लेकिन उससे ये मसाइल है, उसमें ये कानूनी जो है वो चीजें हायल है जिसका दुरुस्त करना जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीक़ाकार ज्यादा अच्छा होता। अच्छा इसमें जो है जैसे तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पे लगाया जी तौहीन अदालत के जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी हॉस्पिटल के हवाले से कि जी वहाँ मुंतकिल नहीं किया गया और ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आपको पता है कि अदालत का साथ एक और भी ऑर्डर था कि उसमें कहा था कि इमरान खान के मेडिकल चेकअप के बाद कोई भी फैमिली मेम्बर, उनके वकला, सियासी रहनुमा बाहर आके कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनके हवाले से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जबकि आपने देखा कि ये खुद भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए और कल सब ने बाजमात बैठ के एक एक चीज जो है वो बताई गई। इवन के उस्मा खान ने जो सियासी उनका पैगाम था वो भी वजीर आला KP को दिया कि जी उन्होंने कहा है कि अपनी मूवमेंट को आप तेज कर दे। ये क्या हो रहा है? माशाल्लाह इमरान खान जो है बिल्कुल फिट हैं, देखें ज़हनी तौर पर, फिजिकली जी हुकूमत की तरफ से भी हुआ है जी और जो उस्मा खान है उन्होंने भी बिल्कुल उसकी सही फर्जी की है जी।
तो फिर ये किस तरह मतलब कह सकते हैं कि जी हम ठीक हैं आप गलत हैं? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जी कि कल अगर उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत है जी तो वो दोनों तौहीन यकजा हो जाएंगी जी। और उनको यकजा तौर पर सुना जाएगा जी। और उसमें जब ये पहलू जब आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि खुद डॉक्टर उस्मान है वो उनको फिट करार दिया, जी। उन्होंने कहा कि मेरे सामने सारे टेस्ट हुए और वो बिल्कुल हशास प्रशास जी। है, तो फिर मेरा कहना है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर है जी उसकी जो अहमियत है वो काफी कम हो जाएगी और फिर उसके इम्कानात मौजूद है जी। जो हुकूमत की नजरसानी की जो दरखास्त है उसके ऊपर शायद अमल दरामद हो जाए। जी अच्छा, साथ उन्होंने कहा ना मतलब मैंने ये चीज़ देखी या सब ने देखी, ये चीज़ नोट की है कि फैमिली जो है उनको फिट डिक्लेयर करिए जैसा कि आप खुद भी अभी कह रहे हैं, लेकिन जो सियासी रहनुमा है ना उनकी सेहत के ऊपर सियासत करते नजर आए हैं। मतलब उनका ये मौकफ था कि एडमिट क्यों नहीं किया गया, हम लोग सारा सामान लेकर आए थे, तैयारी के साथ आए थे। उनका ये था कि अगली समात तक 16 सितंबर तक जो है वो हॉस्पिटल में रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। मतलब वहां पर इलाज होना था या कोई पार्टी होनी थी उनकी या पिकनिक पे वो आए थे? बाकी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि उस जेल से लाने से पहले जी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया भी और रेगुलर मीडिया जी जी उसके ऊपर जो तबसरे हो रहे थे जी जी बड़े जमीन आसमान के कलामे में लाए जी। जा रहे थे कि ये डील का जो है जी। पहला हिस्सा है, उसके बाद फिर वहां से बनीगाला होगा, जी। बनीगाला से बैरूत ख्याली होगा। पुलाव पकड़े थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन देखें अदालत फिर वो वजीर आजम बन जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है ये लोगों ने ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था जी लेकिन वो जो अचानक एक सरप्राइज जब मिला जी तो जब उनको ये भी पता नहीं चला कि उनको पिम्स में जो है वो ले जाया गया है जी। और वो तो यही समझ रहे थे कि शायद वो शिफा हॉस्पिटल में है। जी। तो वो तो सुबह जब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का जो एक्स पे पैगाम चला तो उसमें उनको पता चला कि ये तो जाहिर बात है कि उसको उन्होंने बड़ा ही मतलब सीक्रेट रखा, सिर्फ इस वजह से सिक्योरिटी रीजन थे जिसकी वजह से 2 दिन, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये सब चीजें शुरू हो गई थी और शिफा इंटरनेशनल के चक्कर लग रहे थे, देख रहे थे कि मतलब किसी तरह हम वहां पर पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो था हुकूमत ने मतलब बड़ा मोहतात जो रवैया था वो अपनाया कि ताकि किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। लेकिन जो इनकी तरफ से ये चीजें हुई हैं, मतलब दोनों तरफ से अगर कहा जाए, अगर वो उनको कह रहे हैं तो दूसरी तरफ भी कुछ कमी नहीं हुई है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि दोनों तरफ से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ है जी। और वो न किसी हद तक अदालत के हुक्म की जो है ना हुक्मतुली में आता है। अच्छा सर, अदालत ने कहा था कि इनका मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी ना उसके मुताबिक यही लग रहा था कि पता नहीं उनकी कितनी तबीयत खराब है। इवन के सोशल मीडिया के ऊपर जो था, जो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो है ही नहीं। तो अदालत ने उसके ऊपर दिया था कि मेडिकल चेकअप हो। उन्हें अदालत को भी यही लगा कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अब अदालत भी देखेगी कि अगर वो फिट हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी अब उनकी जमा हो जाएंगी, बीपी ठीक है, आंख की बिनाई का जो मसला था वो भी ठीक है, तो इस पे अदालत क्या कहेगी? ये फिर वो कहेगी कि आपने जी 1 महीने तक क्यों नहीं रखा उनको जबकि वो फिट डिक्लेयर हो गए। कि अभी हालात थोड़े से बदल गए हैं, उनकी अदालत की उनके खिलाफ वर्जी दोनों तरफ से हुई है और ये बात भी सामने आ चुकी है। देखिए ना, उनकी जो बहन है वो डॉक्टर है जी। जब वो इस बात का इकरार कर रही है कि मैं खुद मिली हूँ और मेरे सामने टेस्ट हुए हैं जी जी और वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो तो फिर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। चेंज हो तो जाता है। उनका वो जो पूरा स्टांस उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जी। वो उसकी भी तो हैसियत खत्म हो जाएगी। वही ना कि आज जो है पीटीआई ने भी तौहीन अदालत की, आपको पता है कि दरखास्त जमा करवा दी है। कल जो है हुकूमत की तरफ से जो था नजरसानी की दरखास्त दायर करवा दी गई थी, क्योंकि हुकूमत का मौकफ था कि किसी कैदी को जो है आप प्राइवेट तौर पर जो है इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं दे सकते, क्योंकि कैदी सब बराबर हैं, या बाकी कैदियों को भी ये सहूलियात मैसर होंगी बाद में, क्योंकि इस तरह तो वो जो अडियाला जेल में 7-8 हज़ार कैदी हैं वो भी डिमांड करेंगे जी हमने जो सरकारी हॉस्पिटल जाना ही नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। तो क्या उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा? लेकिन फिर तो ये मिसाल कायम हो जाती ना, अगर ये फैसला जो है ये 16 जो है सितंबर को दोबारा अगर समाप्त होती है जी जी। और अपने इस फैसले को वो हतमी शक्ल दे देते हैं तो फिर तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फिर ये वाली सहूलत जो है वो फिर एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं होती, वो तो पूरे पाकिस्तान में जितने अंडर ट्रायल और जो कैदी हैं उनको तो फिर ये जी। वो कहा जाता है ना कि कानून की नज़र में हर इंसान बराबर है।
تو پھر یہ ہے کہ وہ تو پھر سب کے اوپر ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ نے بڑی کلیئر کر دی ہیں, اور یہ جو ہے اگلی سماعت پہ پھر سارا یہ پتہ چل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا. جی ناظرین, دیکھا آپ نے کہ شاہ خاور صاحب جو ہیں انہوں نے کس طرح ہمیں جو لیگل چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھائی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا اپنا موقف ہے اور تحریک انصاف کا اپنا دعویٰ. کس نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی اور کس کا موقف درست ہے, اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ ہی کرے گی. امید ہے ناظرین آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.